Hello, my dear nuns and monks. My name is Mudra Kumar, and welcome to the fourth episode of the Millennial Monk Podcast. We still have with us academic, intellectual, educator, and a perennial source of knowledge, Professor Purushottam Agrawal. Welcome, sir. कैसे हैं सर आप? थैंक यू मुद्रा, आई एम फाइन, बहुत अच्छा हूँ। आपसे बात करना हमेशा अच्छा लगता है, इस बार भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। दिल्ली में कैसे हाल सर? बारिश वगैरह चल रही है वहाँ पे अभी? हाँ, वेल एट लास्ट इंद्रदेव की कृपा हुई है। फॉर लास्ट 2 or 3 days वी हैव बीन हैविंग गुड रेन्स। Yes, sir. So before we start, I just want to take this moment and I want to thank everyone who has supported us so far. आपके comments, आपके encouragement, आपका feedback, it has only strengthened our resolve to make better content. So thank you everyone who has been with us so far. Please keep engaging with us and please like, share, comment, subscribe, and let us know how we can do better. May I say something here? Yes, sir. Please. This refers to something which is in social media parlance, it's called trolling. I just want to communicate to those who have made some adverse remarks and comments, and I welcome all adverse remarks and comments. In fact, I welcome them more than the supporting or approving remarks, provided they really challenge me intellectually and they give me some food for thought. What happens, I have been reflecting on this, Mudra. It so happens that when you listen to someone, you are actually not listening to what he's saying. You have a pre-assumption about what he's going to say. So you are not talking to the person, or you are not listening to the person. You are listening to his or her image which you have constructed in your mind. Yes. So your responses are not actually spontaneous and natural. They, without probably you realizing this, they are kind of stock responses. So if this man is saying something, must be talking nonsense, or must be talking something bad about my religion, my faith, or whatever, so I must condemn him, even without bothering to listen to what one is saying. And I'm not saying that this just with reference to my statements or to this particular podcast. Unfortunately, this is becoming a trend. Yes, sir. And therefore, most of the times, we are in a kind of monologue. We are talking to ourselves or to the image created by us, not to the real person. So just जो आपने कहा उसमें अपनी ओर से मैं इतना ही जोड़ूंगा कि मैं और मुद्रा जो बातचीत कर रहे हैं वो बहुत सच्चे दिल से और बहुत खुले दिमाग से कर रहे हैं। तो इस बातचीत को सुनिए, इस बातचीत पर बहस कीजिए। मुझे या मुद्रा को कोसने से कोई फायदा नहीं। फॉर द सिंपल रीजन, मुद्रा के बारे में भी मैं जानता हूं और मैं तो इस तरह की बातें सुन करके अब पक गया हूं और मेरी चमड़ी बहुत I hardly bother. Only if you make a serious remark, howsoever critical or contrary it may be to my understanding, to my description, I would welcome it, I would respond to it even more vigorously. But what can one respond to abuses or to stupid kind of comments? I mean, for example, what one could respond to the fact that I am a 60 plus man, so old man. So if you call me Budhau, it hardly makes a difference. It only shows that you are a Badtamij person. As simple as that, isn't it? Yes, sir. Or if you say me, if you tell me, जैसे एक साहब ने कहा था, इनकी सुनता कौन है, घर में भी कोई नहीं सुनता होगा, तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि आपके घर जैसा हाल नहीं है। मेरे घर में मेरे बच्चे मेरी सुनते हैं और मैं उनकी सुनता हूँ। मेरी बीवी मेरी सुनती है और वो मेरी मेरी बीवी मेरी बात सुनती है और मैं उसकी बात सुनता हूँ। अब आपके यहाँ अगर ऐसा हो कि आप लोग एक दूसरे की नहीं सुनते
और चिल्लाते रहते हैं, तो आई कैन ओनली हैव सिंपैथी फॉर यू, व्हाट एल्स। यस सर, यस सर। बहुत ही मार्के की बात कही है सर आपने कि मेरे लिए तो पहली बार है सर, मैं आपका ट्विटर तो कई सालों से भी फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आपको तो बहुत आदत है, मेरे लिए नया नया है। पर सर आपकी छत्र छाया में रह के मैंने भी सीख लिया है। और नहीं, जिनको मैं वही कह रहा हूँ ना मुद्रा, के बहस करो भाई, बहस से जी कोई नहीं जी खतरा था। जी जी अब ये फिजूल की बात है, और उसमें देखिए मैं कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि बीमारी क्या है। जी सर, जैसे अभी आप कुछ कहें तो मैं वो बात ना सुनूं, मैं केवल इस बात पर ध्यान दूं कि मुद्रा इज सेइंग समथिंग, सो माय रेस्पॉन्स इज प्री डिटरमाइंड, जी एंड द रेस्पॉन्स इज नॉट टू द स्टेटमेंट बीइंग मेड, that response is to the image of Mudra which I have created in my mind, यस सर, which is unfair to him, which is unfair to myself, and which defeats the entire purpose of any discussion or dialogue. जी सर, That's the point I'm trying. जी सर। ये लोगों के कॉन्फर्मेशन बायस का तो हम क्या कर सकते हैं सर, पर अगर हाँ, वो कुछ तो ठीक है। उंगलियां हमारे खिलाफ उठी है तो ये गदगद करने वाली बात है कि इतनी सारी और उंगलियां हैं जो हमारे साथ खड़ी है। और Right. लोगों का जो रिस्पॉन्स आया है वो इतना खूबसूरत है सर, मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है। Definitely. जी Same सर, here. जी सर, Same here. यस सर। तो सर सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिफोर वी गो ऑन टू आज के हमारे टॉपिक पे एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। 3 एपिसोड हुए। 3 एपिसोड जो है मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो पहले 3 एपिसोड हुए हैं वो हमने नागपुर में शूट किए थे, जब सर एक कार्यक्रम के लिए नागपुर आए थे। और उसके बाद से अभी हम 21वीं सदी के आनंद का लुत्फ उठा रहे हैं अभी हम इस वक्त, कि जो हमें टेक्नोलॉजी का जो भी सहारा मिल रहा है उसके थ्रू हम ऐसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो जस्ट एक छोटा सा रिकैप। एपिसोड 1 में हमने इंडिया के बारे में बात की। वाई शुड आई केयर अबाउट इंडिया, वाई शुड आई बॉदर अबाउट इंडिया। उसमें छोटी छोटी कुछ ऐसे ज्ञान के मोती निकले सर कि इनहेरेंट डाइवर्सिटी है इंडिया में, वी आर होपलेसली डिवर्स और हम इसके बिना रह नहीं सकते। एक और चीज जो मुझे बहुत गहरी लगी थी सर वो ये है कि फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में हम सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा नहीं पा रहे थे, हम अपने आंतरिक जो हमारे मामले हैं उनका भी हम एक आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो वो तो मेरे साथ हमेशा रहेगी सर बात। एपिसोड 2 में हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की। इंडिया हैज नो ऑप्शन बट टू बी सेक्युलर, वरना हम तहस नहस हो जाएंगे, हम बिखर जाएंगे। और दूसरी बात जो सोशल मीडिया पे भी लोगों ने बहुत जिसकी सराहना की है वो है टोटल इंटॉलरेंस फॉर इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस की कोई जगह नहीं है। अगर हमें एक सोसाइटी की तरह आगे बढ़ना है तो एक दूसरे का साथ लेके, एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे के साथ आदर भाव से रह के हमें आगे बढ़ना होगा। एपिसोड 3 में हम एक बहुत ही एक अलग मोड़ लेते हैं जहां पे हम मॉडर्निटी को समझते हैं, और मॉडर्निटी एज ए हिस्टोरिकल मूवमेंट। अगर एक समाज मॉडर्न हो रहा है तो उसके क्या मायने हैं, वो किन बिंदुओं पे, वो किन पॉइंट्स के ऊपर मॉडर्न होता है। और उसके साथ में हम ये 3rd एपिसोड पे हम एक क्लिफ हैंगर पे आके रुके थे सर, जिसे हम कहते हैं भक्ति मूवमेंट। तो इसके पहले कि हम ये भक्ति मूवमेंट पे जाए, मैं दर्शकों से कह दूं, एवरीवन, ऑल द ऑडियंस, एवरीवन, ऑल द सब्सक्राइबर, ऑल द व्यूअर्स, आप ये पहले 3 एपिसोड देख सकते हैं। बट ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये 3 एपिसोड देख के ही आज के एपिसोड समझ पाएंगे। ये सब एपिसोड एक कड़ी में भी है, एक सिलसिले में भी है, और एक दूसरे से जुदा भी है, तो आप इन्हें अलग से भी देख सकते हैं। बट पहले 3 एपिसोड के थ्रू हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो बात उठती है सर भक्ति लिटरेचर पे। पर इसके पहले कि प्रोफेसर अग्रवाल हम भक्ति लिटरेचर पे आए, मेरा डंके की चोट पे आपसे सवाल है कि एज ए हिस्टोरियन, एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट, यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, आप ये सब चीजें जानना आपको जरूरी है कि भाई भक्ति लिटरेचर क्या है, कौन है। पर मेरा सवाल सिंपल है सर, मेरा इससे क्या लेना देना है? इस भक्ति लिटरेचर से सर मेरे कॉन्टेक्स्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? हाउ डज स्टडिंग अबाउट समथिंग लाइक दिस, हाउ डज इट इंप्रूव माई क्वालिटी ऑफ लाइफ? मेरे जैसे सर बहुत सारे लोग हैं कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं एक वर्क लाइफ बैलेंस पाने के लिए। हाउ कैन नोइंग अबाउट दीज थिंग्स इंप्रूव देयर लाइव्स? ये सवाल है सर मेरा आपसे, प्रोफेसर अग्रवाल। Thank you, Mudra. This is, I think, the most important question. And this question is not about bhakti literature only, but this is about, as you rightly put it, work-life balance, everyday life balance, and balance and calmness within yourself, and a fruitful relationship with your
group, your peer group, your family, your community, your society, and like that. So, how does interacting with bhakti poets help you in this? This is the most valid question. And let me tell you this, forget about being a student of literature or history or whatever. Just forget about it. Okay, sir. To put it very simply, the bhakti poets, particularly the Nirmal bhakti poets, give you very important life clues. The way you can lead a meaningful and a positive life, provided you read them with your own vivek, with your own wisdom, with your own critical understanding. Now, you and the other listeners must listen to this slightly complex process with some patience. In the first place, when I call vivek or wisdom, that is a kind of sum total of whatever you have learned till now at this particular moment. And needless to say that this is not only your own family, not only your own community, not only your own language, but in some way or the other, the nuggets of wisdom or essence of some experiences and wisdom have come to you from all humanity. Okay? Okay, sir. Let us look at this language itself. We are talking in English language. Neither me nor you. None of us have English as mother tongue. No. But as a language of general communication and as a language which will include people whose mother tongue is neither Hindi nor Marathi, English serves as a tool. Yes, sir. Similarly, the idea of modern democracy, Ji. the ideas of modern management, they have not come to you from your own tradition, so-called your own tradition. Similarly, if you were an American, so yoga does not come from your own tradition. It comes from India. Mhm. Acupuncture does not come from your own tradition. It comes from China. This is true of practices and this is true of ideas. So when I say Vivek, I mean your interaction with whatever values and knowledge humanity has earned so far. Again, a clarification. It does not mean that you have to be a kind of encyclopedic scholar. That's not the point. Okay. You need not know everything. Nobody knows everything. And anybody who claims that he knows everything, as a matter of fact, knows nothing. Mhm. So it's not a question of knowing everything or knowing lot of things, but having a sense that the idea of Vivek must not be seen in a sectarian way. That is one. Secondly, when you read these bhakti poets, Nirgun bhakti poets in particular, I would repeat. So what is that difference between Nirgun and what are... Basically, Nirgun bhakti poets are those who, most of them, reject any outward forms of spirituality and worship, who do not necessarily consider Hindu or Muslim scriptures as the source of authority, and who insist on their own experience and their own discretion, Mhm. their own critical thinking Mhm. as a source of assessment and as a source of describing anything. Okay, sir. So, for example, if you quote a line from Quran to a Nirgun Bhakti poet, he is not going to be impressed with that necessarily, or from Ved or from anything. He would ask you some very fundamental commonsensical questions. If you cannot answer them, then scriptures and scriptural authority is not is not going to impress him unduly. Right. Okay. Yes. So this is broadly speaking. I mean, I'm not going into the technical description, Ji. but for a layman, this is the basic difference. Ji. So these Nirgun Bhakti poets, and by the way, it does not mean that Sagun Bhakti poets are less important. Sure. I am not talking of relative importance at the moment. I'm talking of the specific approach to life. Sure.
एक and a specific approach to knowledge systems. Yes. श्योर सर, एक बेस लेवल पे अगर ऐसा समझा जाए कि मैं जिस तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ कि निर्गुण भक्ति पोएट वो किसी क्वालिटेटिव फॉर्म की पूजा नहीं करते, किसी आइडल को नहीं पूजते, और जो सगुण होंगे वो शायद किसी आइडल को या किसी तरह के एक इमेज की पूजा करते हैं। राइट। ठीक है सर। हाँ, मोटे तौर पे ये भी कह सकते जी। हैं, बट मोर इम्पोर्टेंट इज व्हाट आई टोल्ड यू, मोर इम्पोर्टेंट इज द आइडिया ऑफ प्रूफ, यस सर। द आइडिया ऑफ अथॉरिटी। जी। अब जैसे मान लीजिए कि साहब फलानी किताब में ये लिखा है इसलिए आपको मान लेना चाहिए, निर्गुण भक्ति पोएट्स विल नॉट एक्सेप्ट। जी सर, जी सर। They will argue against that. They will challenge that authority. That's more important. Okay, sir. So, idol worship or not, that's not very important. The more important thing is that their idea of authority, their idea of source of knowledge, their idea of source of authenticity. Yes, sir. Okay. So now, these poets, if you read them, you would find that they do not make a distinction, or rather they insist on treating the life as an integrated whole in its spiritual and everyday spheres. For them, spirituality is not something detached from everyday life. And that is why, for example, they do not consider it necessary to have a separate space for puja or namaz. In their context. For example, there is a famous poem from Kabir in which he says कि मैं तो जहां भी जाता हूं वो परिक्रमा है, जब मैं खाता हूं तो भगवान को भोगी लगाता हूं, जब मैं सोता हूं तो दंडवत कर रहा होता हूं, जब मैं काम कर रहा होता हूं तो पूजा कर रहा होता हूं. The point he is trying to make is this, that spirituality or attempt to relate with divinity is not distinct from my so-called mundane activity. When I'm doing my work, I mean, let us translate it in today's idiom. जी. When you are writing your thesis, जी. or when you are preparing a project for your firm, or when you are dealing with someone at your business establishment, if you listen to Nirgun poet, he is saying that precisely is the moment when at the same time you also should be doing your spiritual activity. You see what happens? We go to the temple, जी. or we go to some dhyan kendra, जी. or something like that, and then that is one thing, the entire life is something else. Nirgun Bhakti poets tell you that in fact the whole life is the sphere of sadhana. The whole life is the sphere of connecting with, you call it Ram, invisible, universe, divinity, or whatever. Yes, sir. So that is first thing, since you were talking of life-work balance. दूसरी बात यह है कि एक सेंस ऑफ पर्पज, एक सेल्फ अवेयरनेस. सी सारे all religions or all such kind of faith systems, they exist precisely because of the fact that every human being, by definition, it's almost programmed to think beyond here and now. आप देखिए, जानवर को कल की परवाह नहीं होती और उसको कल की मेमोरी भी नहीं होती. जी. आप एक ऐसी स्पेसी हैं जिसके आज में आने वाला कल भी शामिल है और जो बीत गया वो कल भी शामिल है. जी. आप केवल आज में नहीं जी सकते, आप केवल इस पल में नहीं जी सकते, इसीलिए आप प्लान करते हैं. जी. और प्लान ऐसे करते हैं कि जैसे सारी न जाने कितने बरस आपके पास है. वो जो मिसरा है कि सामा 100 बरस का, पल की खबर नहीं. एक पल की खबर नहीं है कि क्या होगा, लेकिन इंतजाम पूरे 100 साल का आप करते हैं. तो वो सही है, बिकॉज दैट इज दी ह्यूमन प्रोग्रामिंग. यस सर. गॉड और नेचर हैज प्रोग्राम्ड यू इन सच अ वे. तो इससे क्या होता है
कि आप यहाँ और आगे की भी सोचते हैं। उसी का लॉजिकल एक्सटेंशन ये है कि आप मरने के बाद की भी सोचते हैं। एवरी रिलीजन प्रोवाइड सम काइंड ऑफ इमेजिनेशन ऑफ आफ्टर लाइफ। यस सर। चाहे आप उसे मोक्ष कह लीजिए, चाहे जन्नत कह लीजिए, स्वर्ग कह लीजिए, वॉट एवर, एटर्नल लाइफ कह लीजिए। निर्गुण भक्ति पोएट्स टेल यू, they do not polemically discard this thing or dispute this thing, but they tell you कि असल में जैसे हम मोक्ष कहें या जैसे एक सेंस ऑफ लिबरेशन कहें या भगवान से मिलना कहें, वो अगर होना है तो इसी जिंदगी में, क्योंकि इसके बाद कोई जिंदगी है नहीं, और अगर हो भी तो वो आपकी जिंदगी नहीं होगी। मान लीजिए कि मेरा पुनर्जन्म होता है, आपका मेरा पुनर्जन्म होता है, मैं 10 साल बाद मर गया और मेरा पुनर्जन्म हुआ, तो बाई डेफिनेशन मुझे ये जन्म तो याद होगा नहीं। कम से कम मुझे नहीं याद कि मैं पिछले जन्म में क्या था, एंड आई होप कि तुम्हें भी याद नहीं है। जी। तो अब अगर मान लीजिए पुनर्जन्म हो भी जाए तो मेरा तो जन्म है ही नहीं। वो द स्टोरी ऑफ पुरुषोत्तम इज ओवर। इवन इफ द पुरुषोत्तम इज रिबॉर्न, इट इज सम अदर मैन, सम अदर पर्सन, और हु नोज, सम एनिमल और वॉट एवर। तो यही जन्म है। और कबीर एक कविता में कहते हैं कि अगर मिलना है राम तो इसी जन्म में मिलो, मरने के बाद मिले तो क्या मिले, मुआ पीछे मिले कौन है कारण राम। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मीटिंग आफ्टर डेथ? बिकॉज देन आई विल नॉट बी मी, मैं होऊंगा ही नहीं, तो मिलना ना मिलना हो तो सब रिलेवेंट हो गया। इससे नतीजा ये निकलता है मुद्रा। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, and this is another point, a kind of digression but important digression. लिटरेचर की कोई भी चीज हो, वो बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है कि आप पढ़ते कैसे। जी। देखिए, मैं एक बार यूएसए में एक कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था, तो एक किसी किताब को लेकर कंट्रोवर्सी थी। अच्छी किताब थी, लेकिन आजकल जैसा हर्ट फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स का किस्सा चलता रहता है, हमारे दोस्त हैं, नाम वाम लेने से कोई फायदा नहीं, अच्छे समझदार प्रोफेसर हैं, उनकी किताब को लेकर कंट्रोवर्सी थी। तो उसमें मैं बोल रहा था, तो जो सज्जन कंट्रोवर्सी कर रहे थे, तो मैंने उनको एड्रेस करके कहा, मैंने कहा देखिए, कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं खुद ठीक होने के लिए, आप किताब पढ़ते हैं किताब को ठीक करने के लिए। तो भक्ति पोएट्स ऐसा नहीं करते। दे हैव द इमेज ऑफ बीइंग वेरी क्रिटिकल, वेरी शार्प, दे आर, but if you read them holistically, then essentially their approach is this। और जो हमारे काम की बात है, हम कैसे पढ़ें डिपेंड इस पे करता है। मैं ये सिफारिश करता हूँ, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप भक्ति पोएट्स को, निर्गुण भक्ति पोएट्स को इस तरह पढ़ें कि एक तो आप ये रियलाइज करें कि काम, बैलेंस अगर हासिल होना है तो इसी जिंदगी में। इसके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरी जिंदगी नहीं होती है, जरूर होती होगी, आई डोंट माइंड, आई डोंट नो, मेरा विश्वास नहीं है, आपका है तो रखिए, लेकिन साथ में ये ध्यान रखिए अगर आपका विश्वास है भी तो दूसरे जन्म में आप मुद्रा कुमार नहीं हो। तो अगर दूसरे जन्म में आपको स्वर्ग का राज्य मिल भी जाए तो वो आपको नहीं मिलेगा, वो किसी और को मिलेगा। तो सो फार एज मुद्रा कुमार इज कंसर्न, उसके लिए रिलेवेंट वही है जो इस जन्म में। इसलिए मिलो तो इसी जिंदगी में, राम अगर मिलना है तो अभी इसी जिंदगी में। अब मिलने का क्या मतलब है? उसी कबीर के यहाँ एक फ्रेज आता है और दूसरे निर्गुण भक्तों के यहाँ भी, आत्म खबर। आत्म खबर, हाँ, साखी शब्दी कह के भूले आत्म खबर ना जाना, सेल्फ अवेयरनेस। और यही वो चीज है जो मैंने पिछले किन्हीं दिनों में से एक डिस्कशन में इसकी ओर थोड़ा सा इशारा किया था। आज इसको मैं रिट्रेट करना चाहता हूँ और इन अ सेंस एलेबोरेट भी करना चाहता हूँ। See, you will find something very interesting in Kabir. In Kabir and in fact in all other Nirgun poets, जी, even in Sagun poets, you will hardly find a particular moment which can be described as a moment of enlightenment.
Mm-hmm. आई मीन इट इज नॉट लाइक दिस कि साहब कहीं तपस्या कर रहे थे और फिर भगवान ने दर्शन दे दिए, या आत्मज्ञान हो गया और बोधि प्राप्त हो गई, या कम्युनियन प्राप्त हो गया गॉड के साथ। नथिंग ऑफ दिस। ये क्या है सर, आजकल ये एनलाइटनमेंट यूथ में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। एनलाइटनमेंट इसको क्या समझे, कैसे इसको क्या चीज है? मैंने तो जैसा कहा कि एनलाइटनमेंट का सीधा सा मतलब मेरे लिए ये है, जी कांस्टेंट सेल्फ अवेयरनेस, कांस्टेंट ग्रोथ एंड कांस्टेंट एम्पैथी। एनलाइटनमेंट का सीधा सा मतलब यह है मुद्रा, कि बेशक आप अपनी सुख सुविधा के लिए काम करें, जरूर करें, बट नेवर फॉरगेट दोज who are not as fortunate as you, जी जी and never forget that there is something called system. There is something called system. लोग अपने आलस के कारण भी बेकार होते हैं, गरीब होते हैं या कमजोर होते हैं, अपनी नालायकियों के कारण भी होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन 75% सिस्टम के कारण। जी जी So if you are really enlightened and if you cannot do anything, I am not asking you to do some fundamental or radical act or whatever, but at least be sensitive to that. जी और इसका एक बहुत मोटा उदाहरण दूं, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स एंड फॉरगेट अबाउट सोशल सिस्टम। आज क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है या नहीं है? हम्म, और क्लाइमेट चेंज का कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज का कारण अंधाधुंध कंज्यूमरिज्म है या नहीं है? जी नेचुरल रिसोर्स के प्रति इनसेंसिटिविटी क्लाइमेट चेंज का कारण है या नहीं? जी सो इफ यू रियली वांट टू लिव better and if you want to leave the legacy of a better life or better earth to your children, तो ये जरूरी है या नहीं है कि आप इस चीज के प्रति भी कुछ सेंसिटिविटी रखें? हम्म, वायलेंस अगर नॉर्मलाइज होती चली जाए, अभी यूएसए में हम देख रहे हैं, हम्म, अभी फिर से वहां कुछ हो गई घटना, हर दूसरे चौथे महीने कोई पागल उठ के खड़ा होता है, गन उठाता है, 15-20 लोगों को शूट कर देता है। जी इसके बावजूद वहां नेशनल राइफल्स एसोसिएशन अड़ी हुई है कि गन कंट्रोल लॉ नहीं बनने देंगे। क्यों? क्या आप तभी मानेंगे जब आपके अपने बच्चे मरने लगे? जब रेशियल या कम्युनल या कास्ट हेट्रेड नॉर्मलाइज होने लगे, जब किसी की शक्ल और किसी के कपड़ों और किसी के नाम की वजह से आप उससे नफरत करने लगे और आप इसके प्रति इनसेंसिटिव रहें, तो फालतू की बात है, कोई एनलाइटनमेंट संभव नहीं। एनलाइटनमेंट इज नॉट अ सेल्फिश थिंग। मतलब कहा ही जाता है कि एनलाइटनमेंट का मतलब है आत्मा का विस्तार, ये एहसास करना कि सब में एक ही है, भगवान है, परमात्मा है, वगैरह वगैरह। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसकी वजह से आपकी डे टू डे लाइफ या आपकी पॉलिटिकल लाइफ ये हो जाए कि साहब एवरीथिंग इज ओके। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम नॉट एक्जनरेटिंग इविल। मैं उन जी लोगों में से नहीं हूं जो ये कहें कि सब ठीक है। नो, सब ठीक नहीं है। लेकिन जैसे आप मान लीजिए एक प्रोफेशनल हैं, आप मैनेजर हैं या आप लॉयर हैं या आप डॉक्टर हैं, तो एक लेवल पर आप अपने प्रोफेशनल उसमें इंटीग्रिटी रखेंगे, हम्म, आप एक सेंस ऑफ बियॉन्ड हियर एंड नाउ रखेंगे, एंड एट द सेम टाइम आप जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं जिन पर एक तरह से आपका बस नहीं है, आप यानी अकेले क्लाइमेट चेंज को कुछ नहीं कर सकते, आप अकेले कम्युनल और कास्टिस्ट वायलेंस का कुछ नहीं कर सकते, जी लेकिन आप उसके प्रति एक एम्पैथी, एक सेंसिटिविटी तो रख सकते हैं, विच वुड मीन कि जरूरत पड़ने पर अगर आपसे पूछा जाए जिस भी शक्ल में, पब्लिक ओपिनियन में या किसी भी शक्ल में, तो आप ऐसी पॉलिसीज का विरोध करेंगे। जी यू गेट माई पॉइंट? जी 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 जब कोई सज्जन ये कहें जो संयोग से कुछ बरस पहले तक यूएसए के प्रेसिडेंट थे, ये काहे का क्लाइमेट चेंज, न्यूयॉर्क में तो अभी भी बर्फ पड़ रही है। अगर कोई ऐसी शुद्ध बेवकूफ़ी की बातें करे तो ऐसे आदमी को वोट तो आप नहीं देंगे ना फिर। जी या कोई कहे कि डेटॉल पीने से कोविड ठीक हो जाएगा, तो आप सोचेंगे ना कि भाई ये गड़बड़ है मामला। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय एनलाइटनमेंट। आई एम नॉट मेकिंग एनी क्वेश्चन ऑफ चॉइस, वॉट एवर योर चॉइस बी, but if it has to be an enlightened choice, so by definition it has two components. One, a critical thinking. Two, an empathy.
particularly with the less advantaged. जी और ये बात लगातार याद रखने की। अब जैसे कबीर का एक बहुत मशहूर हुआ है, अगेन जो मैं कह रहा था आपसे कि सवाल ये है कि आप पढ़ते किस तरह हैं। जी दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को। नाउ यूजुअली इट इज ट्रांसलेटेड एज if you remember God in during your good days, then maybe bad days will never come, or you will be able to face the bad days. जी I put it in a different way. कहीं गॉड है नहीं इस पोइट्री में, अच्छा सुमरन है, दैट इज मेमोरी, स्मरण। जी तो जब आप सुख में हैं, जब आप आनंद में हैं, तब भी कुछ चीजें याद रखिए। ये जो आनंद है इसमें ये मत भूलिए कि आसपास कुछ गड़बड़ भी है। आसपास ऐसे भी लोग हैं जो इस आनंद को बिगाड़ सकते हैं, जिन्होंने पहले भी बिगाड़ा है, आगे भी बिगाड़ सकते हैं। याद रखिए, ये याद रखिए कि आप आज आनंद में हैं, कल आप शायद नहीं थे, और आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद नहीं है। उस स्थिति में है जिसमें आप कल थे। अगर ये सब आप याद रखेंगे तो आपका एक्ट अपने आप स्पॉन्टेनियसली, सहज रूप से मॉरल एक्ट होगा। और मॉरल एक्ट होने के साथ वो कोई सेल्फ सेक्रीफाइस का एक्ट नहीं होगा। ये कोई नहीं कह रहा है। कबीरदास कभी जंगल में नहीं रहे, कभी भी बच्चों को छोड़ कर नहीं भागे। जी अपने जैसे रहते थे, काम करते थे, अपना कपड़ा बनाते थे, बेचते थे, वॉट एवर। एंड एवरी वन ऑफ देम, यू मस्ट रिमेंबर दिस, almost every nirguna bhakt was a householder. राइट Whether it is Kabirdas, or it is Tukaram, or it is Pipa, or it is Darya Sahib, or it is Dadu Dayal, whosoever. जी Every single one of them was a householder. जी तो फिर वही वाली बात जो मैंने आपसे कही कि आपका स्पिरिचुअल परस्यूट हम्म और आपकी एवरीडे लाइफ, हाउस होल्डर लाइफ, इनके बीच में कोई नेसेसरी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। वाह आपके प्रोफेशनल एथिक्स और आपके प्रोफेशनल अचीवमेंट और आपकी जनरल एथिक्स और आपकी ह्यूमन सेंसिटिविटी के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। एनलाइटनमेंट कोई पर्टिकुलर मोमेंट नहीं है, और अगर मोमेंट हो भी, जैसे एपिफेनी कहते हैं, हम्म आजकल के आप लोगों के उम्र के बच्चों से मैं बहुत सुनता हूँ एपिफेनी एपिफेनी, बहुत एपिफेनी लोगों को होती रहती है। अच्छा है, ऑलराइट। अगर कोई एपिफेनी है भी तो इट मस्ट लिंगर, इट मस्ट लीव इट्स ट्रेस। वरना तो जैसे एक मेरा गढ़ा हुआ शब्द है, मैं जो कहता हूँ मद्यप संकल्प, मद्यप कहते हैं ड्रंकर्ड को। ओके तो आपने शराब पी और शराब पी के आपने बड़ी बड़ी बातें की, बड़ा बड़ा महसूस किया, और फिर उतरी तो सब भूल। तो देयर मस्ट बी सम डिफरेंस बिटवीन एपिफेनी एंड मद्यप संकल्प। आई लाइक इट, मध्यप संकल्प मैं यूज करूंगा। मद्यप संकल्प, मध्यप मद्यप इज अ ड्रंकर्ड, जी जी संकल्प तुम जानते ही हो। तो मेरा कहना यह है कि इन भक्त पोएट्स को अगर आप पढ़ें, प्रोवाइडेड द वे आई एम सजेस्टिंग, राइट मेरी अपनी रीडिंग है और मैं चाहता हूं कि आप इस तरह पढ़ के कम से कम देखें। ना अच्छा लगे मत पढ़ें, मुझे मेरी बात नहीं समझ में आए मत माने, नो प्रॉब्लम। लेकिन जी आप इस तरह अगर देखें तो यू विल फाइंड दीज भक्त पोएट्स आर गिविंग यू लाइफ क्लूज। राइट They are giving you a sense, they are giving you a sense that enlightenment is not a momentary miracle. It's a constant process. राइट Vivek is not confined to a particular tradition or a particular segment of academics. Vivek is the cumulation of entire human experience, जिससे आप सीख सकते हैं, जिससे आपको सीखना चाहिए। So this is what I think should give you and your generation, I hope, some idea about the relevance of bhakti poets for those
who are not formally into history or literature or anything like that. Yes, sir. So I'm completely having a fanboy moment. I mean, there are so many dense concepts I think that we've discussed, and some that have said. पहला तो सर enlightenment. मतलब मैं थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि बहुत सारे, मैं खुद इस चीज से गुजरा हूँ. हर तरह के गुरुओं से बात करो, उनसे समझो क्या है एनलाइटनमेंट, क्या है, समाधि में बैठ जाओ. पर ये जो एक एप्लीकेबल, एक रैशनल, खासकर, एंड आई वांट टू पे मोर अटेंशन, मोर वेटेज ऑन द वर्ड रैशनल. वो जो एक एनलाइटनमेंट है कि एक सबके प्रति एक एम्पैथी होना एंड एक सेल्फ अवेयरनेस होना. एंड आई एम, इट्स इजियर सेड देन डन, बट दैट सीम्स सो मच मोर इन माय रीच देन समथिंग आउटवर्डली, कि कोई भगवान के करीब आओ, किसी चीज के करीब आओ. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा सर. हमने विवेक देखो, की, भगवान के करीब आने की बातें ऐसा है मुद्रा, जी कि वो कहने वाला भी जानता है कि उसकी जांच का कोई तरीका नहीं है. जी वो एक किस्सा तुम्हें मैं सुनाता हूँ. जी एक सज्जन की बाई एक्सीडेंट नाक कट गई. जी. अब कैसे कट गई दैट इज इररिलेवेंट, लेकिन कट गई. हम्म, तो अब वो, मतलब बेचारे एम्बेरसमेंट और बड़ा वो, तो उनको एक ब्रेन वेव आई. उन्होंने कहना शुरू किया कि नाक तो मैंने अपनी खुद काटी है, क्योंकि नाक होने की वजह से मुझे भगवान नहीं दिखते थे. ओके, क्योंकि नाक एक मेटाफर भी है ना, प्राइड का. ऊंची राइट नाक और नाक राइट. कट गई है वो. तो नाक मेटाफर है प्राइड का. तो मैंने अपना प्राइड हटा दिया, नाक काट ली, तो भगवान मुझे दिखते हैं. और अब भगवान से मेरा सीधा डायलॉग कम्युनिकेशन हो गया है. तो एक दो लोग इस चक्कर में पड़ गए, उन्होंने भी नाक कटवा ली. और फिर सज्जन को पकड़ा के, क्या यार तुम तो मरवा दिया तुमने. बोले अब तुम भी यही कहो वरना सब हंसेंगे. तुम भी यही कहो कि नाक कट गई तो भगवान देख रहे हैं. तो धीरे धीरे नकरा संप्रदाय खड़ा हो गया, क्योंकि अब मेरी नाक कट गई, मैंने आपकी कटवा दी, आप तीसरे से कह रहे हैं कि नाक कटने से भगवान दिखते हैं. एंड दस अ चेन ऑफ स्टुपिडिटी इज सेट इन मोशन. इस तरह की जो बातें हैं कि भगवान दिख गए और दर्शन हो गए, अगेन आई एम नॉट डाउटिंग एनीथिंग, आई हैव जी नो क्वेश्चन अबाउट दैट. जी However, the point I'm making that it is so beyond the realm of possible कि आप ये मान लेते हैं कि तो हो ही नहीं सकता, और फिर आप उसकी कोशिश भी छोड़ देते हैं. जो बात मैं कह रहा हूं मुद्रा, वो कठिन कितनी भी हो, एटलीस्ट थ्योरेटिकली इट इज नॉट बियॉन्ड द रियल्म ऑफ पॉसिबल. जी ये बिल्कुल बियॉन्ड द रियल्म ऑफ पॉसिबल नहीं है कि आप काम करते समय अपने प्रोफेशनल वर्क में पूरी तरह डूबे हुए भी एक बेसिक ह्यूमन एम्पैथी और सेंसिटिविटी बनाए रख सकें. नथिंग जी एट ऑल बियॉन्ड रियल्म ऑफ पॉसिबल. जी और ये रोजमर्रा के जीवन में आपको दिखेगा. हम दोनों मेल हैं, मैं विवाहित, यू आर नॉट. अब हम कुछ चीजों को बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं. जी और मेरी पत्नी या किसी की भी पत्नी, उसके अपने काम के अलावा, इफ शी इज अ वर्किंग वुमेन, एज मैनी ऑफ वीमेन आर इन मॉडर्न वर्ल्ड, उसके अपने काम के अलावा जो घर की और सारे संबंधों की, सारे मोहल्ले की, परिवार के साथ संबंध बनाने की जो जिम्मेदारी है, यू टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड यू डू नॉट इवन फील एन आयोटा ऑफ एम्पैथी विद हर. जी. ये क्या है? मैं तो ये कह रहा हूं आपसे, आपका कर्मचारी है, आपका भाई है, आपका सीनियर है, जूनियर है, इफ यू हैव सेंस ऑफ एम्पैथी, you will have a different kind of relationship, you will have a different kind of quality relationship. ये मेरे कहने का मतलब है. जी सर, जी सर. और इसमें जो जो बात तुमने कही कि एनलाइटनमेंट, अगेन आप किन्हीं गुरुजी से मिले, उनसे आपकी कुंडलिनी जाग गई, आपका जो, नहीं हंसो मत, ये सब मैं बिल्कुल सीरियसली मानने को तैयार हूं, मानता हूं. रिजल्ट क्या दिख रहा है? अब कोई योगी है और उनसे कोई जरा सी बात करे तो वो हाथ पैर फेंकने लगते हैं गुस्से के मारे, ऊट पटांग बातें करते रहते हैं. उनके अहंकार की और लालच की कोई सीमा नहीं है. पतंजलि के योग में योग की बुनियादी परिभाषा है, योगः चित्तवृत्ति निरोध. योग मीन्स टू कंट्रोल योर पैशंस. आप ना तो अपने पैशन यानी एंगर को कंट्रोल कर पा रहे हैं,
ना अपने पैशन ऑफ ग्रीड को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना अपने पैशन ऑफ लॉर्डिंग इट ओवर ताकत जताने को कंट्रोल कर पा रहे हैं, फिर भी आप योगी हैं। योग इज नॉट फिजिकल एक्सरसाइज. फिजिकल एक्सरसाइज इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ योग. राइट। योगा चित्तवृत्ति निरोध. तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप योग करें, भक्ति करें, पूजा करें, नमाज करें, एक्स गुरुजी के पास जाएं, वाई गुरुजी के पास जाएं, आई हैव नो इशू विद व्हाट्सएवर. मैं भी अपने बचपन में गुरुओं के पास गया हूं और इसको कोई अहंकार ना माना जाए, लेकिन बचपन के बाद मुझे गुरुओं की जरूरत खत्म हो गई. गुरुओं की खोज मुझे बच्चों का काम लगता है, क्योंकि मैं खुद गुरु हूं. Everyone is and everyone ought to be one's own guru, one's own guide, because ultimately it's you. गुरु मान लीजिए कोई हो भी, कोच, स्पिरिचुअल कोच, तो कोई भी कोच 1000 लोगों को सिखाता है, अचीवर उनमें से कितने होते हैं? जी। तो आपके गुरु हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके कोई भी गुरु हो. अगेन आई एम सेइंग विद दिस utmost respect. Okay. I have respect for everything, for everybody, but the most important thing is the result. जी। आप काम हैं, आप कंपोज्ड हैं, ठीक है. अगर नहीं है, और अगर हैं भी, तो एक एडिशनल क्लू हो सकता है कि अगर आप उस तरह भक्ति पोएट्स को पढ़ें जैसे मैं रिकमेंड कर रहा हूं, तो आई एम प्रीटी श्योर यू विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. जी सर. यस सर, यू डिड मेंशन अबाउट हम आज के मॉरल स्टैंडर्ड्स पे उनको जज करें, पर जितना सुनने में ऐसा लग रहा है कि वो भक्ति पोएट्स उन्होंने खुद ही को जज कर लिया. वो एक सेवरल एस्पेक्ट्स जजमेंट के थ्रू अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं. जी सर. See, the point is that all bhakti poets have great regard, great kind of commitment to Guru. They are the idea of Guru is very significant in bhakti poets, particularly in Nirgun bhakti poets. Interestingly, the idea of Guru is very strong in Nirgun bhakti. It is not as strong in Sagun bhakti. Okay. जी. But then, जैसे कि आप जानते हैं कबीर की कहानी और दूसरों की भी, वो गुरु का चुनाव भी बड़ी कड़ाई से करते हैं. They judge Guru also. Not everyone could be the Guru. जी. यानी अगर आप मुझे गुरु बनाना चाहते हैं, तो आप मुझे बहुत कड़ाई से जांचेंगे ये गुरु बनने लायक है या नहीं, और बना लेने के बाद भी आप निगाह रखेंगे. तो इट्स नॉट प्योरली वन वे सरेंडर, इट्स अ काइंड ऑफ डायलॉग. यस. सो you see, again, there is a line, Hare Guru Peer Hamara. God is my Guru, God is my Peer, God is my guide. And at the same time, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर. So चाहे गुरु हो चाहे हरि हो, if I have purified my mind, they will come after me. जी. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अच्छा, एक और बात मैं कह के, और फिर मेरे ख्याल से बहुत आज काफी लंबी और मुझे लगता है गहरी बातें हो गई. जी सर. तो वी कैन स्टॉप एट दैट एंड वी कैन कंटिन्यू द नेक्स्ट एपिसोड. श्योर सर. एक मैं और बात कहना चाहता हूं कि देखिए, अगेन, किसी को भी उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से अलग करके नहीं बोलना चाहिए. जी. दूसरी बात ये कि किसी को भी इनफॉलिबल मानकर या टोटल फॉलोइंग करने के लिहाज से नहीं पढ़ना चाहिए. अगेन, अपना विवेक. मैं कबीर का एडमायरर हूं जी. मैं गांधी जी का एडमायरर हूं, मैं जवाहरलाल नेहरू का एडमायरर हूं. आई रीड एंड अंडरस्टैंड नन ऑफ देम अनक्रिटिकली. जी.
मैं अपना विवेक इनमें से किसी के आगे समर्पित नहीं करता। मैं प्रेम करता हूं, लेकिन प्रेम में विवेक का समर्पण नहीं करता, जी या कम से कम मुझे नहीं करना चाहिए। अगर मैं प्रेम में विवेक का समर्पण कर देता हूं, और जिससे प्रेम करता हूं, जिसको पसंद करने लगा हूं, जिसका एडमायरर हो गया हूं, उसकी खामियां मुझे दिखनी ही बंद हो जाएं, तो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। जी गेट माई पॉइंट? आई नीड टू यस वर्क सर। ऑन माई सेल्फ। एंड द मोमेंट आई फील कि अरे यार, ये बात तो जवाहरलाल जी बड़ी गड़बड़ कह गए, और ये मुझे अटपटी लगनी चाहिए लेकिन नहीं लग रही, इसका मतलब गड़बड़ है, जी मुझ में गड़बड़ है। जी So I recommend particularly the young people who are looking for life-work balance, or some kind of enlightenment, or some kind of, you know, uh, equanimity in life. आप पढ़िए, निर्गुण भक्तों को पढ़िए, उससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुद अपने तई पढ़ने और सोचने की आदत डालिए। जी सोचने की, अपने गुरु आप खुद बनिए। अब बाहर का कोई गुरु आप चुनते हैं तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप किसी को भी चुन लीजिए। वो तो हमारे यहाँ बहुत मार्के की बात कही गई है बोलचाल में, लेकिन बहुत मार्के की बात है कि मानो तो देवता, नहीं तो पत्थर। जिसको मैं प्रतिमा मान के पूछता हूँ, दूसरे के लिए वो पत्थर हो सकता है। जिसको मैं पैगंबर समझता हूँ, दूसरे के लिए वो केवल एक ह्यूमन बीइंग हो सकता है। जिसको मैं सन ऑफ गॉड समझता हूँ, वो दूसरे के लिए केवल ह्यूमन बीइंग हो सकता है। जी आप मुझे गुरु मान लीजिए, मेरी पूजा करने लगी, आई डोंट माइंड, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। आप कीजिए खूब पूजा, मेरी या किसी की भी। द पॉइंट ओवर इज कि वो पूजा करते समय आप अपना खुद का सोचना और खुद की साधना को मत कीजिए। दैट पूजा शुड नॉट बी द सरेंडर। Love should not be the surrender of your own moral integrity and your own intellectual capability. यस Whether it is love of Guru, or it is love of nation, or it is love of God. That's all. वाओ वाओ सर, pun definitely intended. What an enlightening conversation. Thank you, Mudra. सर Thank you. गुरुवर, आपका शुक्रिया। आप ऐसे ही हम पे ज्ञान की वर्षा करते रहिए। अच्छा, ये देखो संयोग है, ये तुमने गुरुवार कहा इसलिए मुझे याद आ गया। बहुत ही संयोग है, जाहिर है कि कोई डिजाइन नहीं है। आज गुरु पूर्णिमा है भाई, वाह सर, आज गुरु पूर्णिमा है भाई। व्हाट एन इनक्रेडिबल कोइंसिडेंस। गुरु पूर्णिमा की आपको, हमारे दर्शकों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको शुभकामनाएं। जी सर। सर थैंक, आई थिंक so much to unpack. In fact, I had so many questions, sir, but I think जो डायरेक्शन में हम गए आपके साथ, डाइग्रेशन भी सर एक अलग दुनिया हो जाती है। तो डाइग्रेशन हमारा होते रहे, यही मेरी कामना होगी। और बहुत सारे क्वेश्चन थे, विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट एपिसोड। अभी हमने एक कॉन्टेक्स्ट अभी यहाँ पे जो क्रिएट किया है कि इनको कैसे पढ़ा जाए, इनको समझने का एक तरीका क्या है, तो अभी हम अगले एपिसोड में हम एक डीप डाइव करेंगे कि ये लोग थे कौन, इनका इम्पैक्ट क्या था, इनका आज हमारी जिंदगी पे कैसा असर है, हमारे समाज पे कैसा असर है। ये चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे सर। प्रोफेसर अग्रवाल, यस सर, यू सेइंग समथिंग? No, I was just saying that it is such a pleasant experience to talk to you, and it really helps me clarifying my own concepts and my own thinking. And frankly speaking, in these dark times, talking to you and through you to so many friends, young friends, which I see on your podcast, in these dark times, which are mostly depressing, these conversations work as rays of hope. Because Mudra, once again, it's only Vivek, it's only Prem, that is empathy, sensitivity. Prem does not mean possessiveness. It means possessiveness also, but primarily it means empathy. You see, I can never forget that Archie poster, which I saw when I was your age or even younger than that.
I don't know whether they make such posters these days or not, but that was a lovely poster. This is a poster, Archie poster. आर्ची This कॉमिक्स. boy, हाँ, नहीं आर्ची कॉमिक्स नहीं, वो आर्ची स्टोर जो था, ओके ओके. वो आर्ची एक स्टोर था, अभी भी है शायद, वो इस तरह की चीजें बनाते हैं, वैलेंटाइन कार्ड और तमाम गिफ्ट वगैरह. जी 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 जी. तो मैं भी यार, मैं हमेशा थोड़ी बूढ़ा था. But also, I had use for these things. So I will never forget that. It was, this is a girl and a boy watching movie, and the boy is just not watching movie, he's just looking something behind, under the seats. And the legend was, love is missing the entire movie looking for her sentence. वाह 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 वाह. क्या बात है सर. So on one hand, that is one aspect of love. On the other hand, the aspect of love is that not only for her or not only for him, but for humanity as such. Not only for a concrete human being, but also for the abstraction called humanity. And on the other hand, Vivek, discretion. I mean, if my love asked me to murder someone, I should think about it. If my love tells me that, fine, I love you like anything, you kill X or kill Y. Why should I do that? So that is the balance which you have to make. And that is why in these poets, you will find a constant emphasis on Prem and Vivek. वाह. These are crucial keywords there, Prem and Vivek. विवेक. So thank you, Mudra. This was really wonderful today. I really enjoyed talking today and every time. And we will continue our discussion. And I think Absolutely. next episode we will start with Prem and Vivek. Let's do that, sir. Prem and Also Vivek. also about the historical location or historical meaning and contemporary significance of this poetry, the Bhakti poetry. Yes, sir. Great. Thank you, listeners. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Professor Agrawal, and all the listeners. Please, हमें आपके support की बहुत ज़रूरत है. You have supported us so far, and please like, share, comment, subscribe. If you can share it within your groups, with your friends, that will be a great help for us. So thank you so much, and see you in the next episode with Professor Purushottam Agrawal. Thank you, sir. Thank you. So shall I leave the